First, just recall the binomial distribution. It has fixed number of n trials. यानी binomial distribution में हमारे पास जो trials होते हैं, number of trials that is fixed, और वो होता है n से हम उसको denote करते हैं. Each trial is independent. मतलब ये है कि जो probability of success है वो हर trial में change नहीं होगी. It won't change from trial to trial, बल्कि probability of success और failure, ये जिसको हम P और Q से denote करते हैं, that will remain same in all the trials. There are only two possible outcomes, success and failure. यानी या तो कोई जो भी event occur होगा तो उसमें या तो एक ही success है और या फिर दूसरा failure है, कोई तीसरी possibility नहीं है. Probability of success P for each trial is constant. यानी कि वही बात कि यानी जो event is independent, वही मतलब है कि इसमें trial जो probability of success है वो change नहीं होगी, वो सारे trials में constant रहेगी. A random variable x is equal to the number of successes. और जो भी हम x find out कर रहे हैं वो actually जो random variable होगा x इस distribution का, तो वो number of successes के लिए हम denote करते हैं x को. अच्छा, अब इन्हीं जो points हैं इन्हीं में थोड़े से difference के साथ negative binomial distribution. In negative binomial distribution, the number of trials n is not fixed. Number of trials n जो है वो fixed नहीं होते, यानी कि उसमें number of trials change हो सकते हैं. अब किसी एक event में वो 5 हो सकते हैं, उसी event के किसी दूसरी चीज में वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. A random variable x is equal to the number of trials needed to make r successes. यानी कि x denote करता था successes को binomial distribution में, जो हमारे पास random variable जो भी है x, y, z जो भी है. मगर negative binomial में random variable x वो denote करेगा the number of trials needed to make a particular number of successes. यानी हम चाहते हैं कि भाई इतनी successes हो जाएं इतने trials में, तो जितने हमको number of trials चाहिए होंगे वो number of trials जो हैं x denote करेगा. The random variable is the number of repeated trials x that produce a certain number of successes r. In other words, it's the number of failures before a success. अब ये बात इसको आप एक और दफा सुने या इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हम नंबर ऑफ फेलियर्स की भी एक्चुअली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने हमको x वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स देयर आर नीडेड टू मेक आर सक्सेसेस. तो हमको आर सक्सेस चाहिए, अगर उसके लिए जितने भी ट्रायल्स होंगे वो रैंडम वेरिएबल x डिनोट कर रहा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि फेलियर्स भी तो काउंट हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं फेलियर्स की वजह से हमको बार बार ट्रायल करना पड़ रहा है और उस वजह से x की वैल्यू चेंज होती रहेगी. This is the main difference from the binomial distribution. With a regular binomial distribution, you are looking at the number of successes. But with a negative binomial distribution, it is the number of failure that counts. यानी number of failures भी count हो रहे हैं negative binomial distribution में, इसीलिए इसका नाम negative binomial distribution है, क्योंकि इसमें negative यानी कि जो number of failures हैं वो भी count हो रहे हैं, उस वजह से हमारे number of trials जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमको required number of successes नहीं मिल जाता यानी कि R, उतने हमको trials करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आएगा. ये 3 यहाँ शो कर रहा है. इट इज द थर्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट था बायनोमियल, सेकंड था हाइपरज्योमेट्रिक, एंड थर्ड इज द नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Let us consider an example where the properties are the same as those listed for a binomial experiment, with the exception that the trials will be repeated until a fixed number of successes occur. वही बात कि ट्रायल्स हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हमको अपनी सक्सेसेस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सक्सेसेस नहीं मिल जाता. Therefore, instead of the probability of x successes in n trials, we are now interested in the probability that the kth success occurs on the xth trial. यानी कि जैसे हम पहले पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि हमको r नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं मिल जाता, यहाँ k से डिनोट किया हुआ है.
So we are now interested in the probability that the kth success occurs on the xth trial. तो x क्या हुआ, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल, और कौन सा नंबर ऑफ ट्रायल है वो, जिसमें हमको kth सक्सेस मिल रही है, यानी कि कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू है k, हमको इतनी सक्सेसेस चाहिए, तो उसके लिए कितने ट्रायल्स होंगे, वो है x. Experiments of this kind are called negative binomial experiments. अच्छा, अब यहाँ एक एग्जाम्पल कंसिडर की हुई है, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि सही से बायनॉमियल, नेगेटिव बायनॉमियल क्या होता है. Consider the use of a drug that is known to be effective in 60% of the cases where it is used. अब एक ड्रग है जो 60% उसका हील करने का या पेशेंट को सही करने का चांसेस हैं. अच्छा, अब वो ड्रग सक्सेस कब कंसिडर की जाएगी, जब वो कोई to some extent relief the patient को. Now we are interested in finding the probability that the 5th patient to experience relief is the 7th patient to receive the drug during a given week. अब देखें number of trials कितने, 7. क्यों, यानी कि patients कितने, 7 patients हैं. अब we are interested in finding the probability that the 5th patient to experience relief is the 7th patient to receive the drug. मतलब कि एक्चुअली 7 पेशेंट्स को ड्रग दी गई है, उसमें से जो 5th पेशेंट है वो 7th पेशेंट होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि जब हम 7 पेशेंट्स को, 7 जो भी हमारे पास पेशेंट्स हैं, जब उनको हम ड्रग्स दे रहे हैं, तो उसमें से जब 7th पेशेंट की बारी आएगी उसको ड्रग देने की, तो वो एक्चुअली उसको रिलीफ भी मिले, और वो उन 7 पेशेंट्स में से 5th पेशेंट हो जिसको रिलीफ मिल रहा हो. तो इसका मतलब हुआ कि बीच में कितने 2 फेलियर्स हुए होंगे, यानी कि कितने ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको रिलीफ नहीं मिला, वो 2 होंगे, क्योंकि 7 पेशेंट्स हैं, 7 में से ये वाला बंदा 5th है, जो 7th पेशेंट है लास्ट, वो 5th पेशेंट है जिसको रिलीफ मिला है. तो इसका मतलब है बीच में 2 ऐसे होंगे जिनको रिलीफ नहीं मिला, यानी कि हमारे लिए वो फेलियर्स हैं. Designating a success by S and a failure by F, the possible order of achieving the desired result is this. अब ये एक पॉसिबल ऑर्डर है. अब देखें, 2 हमको फेलियर्स चाहिए थे, तो 2 फेलियर्स हमने एक 2nd नंबर पे दिया और एक 6th नंबर पे दिया, मगर ये जरूरी है कि जो 7th नंबर है, this should be the success, because the 7th patient is the 5th to experience relief. इसका मतलब है ये हमको सक्सेस ही चाहिए. अच्छा, अब इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें इस ऑर्डर के लिए, तो देखें सक्सेस की है 0.6 प्रोबेबिलिटी, 60% था, तो 0.6 हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी, और 2nd नंबर पे फेलियर है तो हमने 0.4 लगा दिया. 1 minus 0.6 that is 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. Q से हम जिसे डिनोट करते हैं. अच्छा, फिर 3rd, उसको भी हमने 0.6 प्रोबेबिलिटी, 4th भी सक्सेस है, वो भी 0.6, 5th भी सक्सेस है, तो वो भी 0.6, 6th जो है वो फेलियर है, सो 0.4, और 7th जो है वो सक्सेस है, 0.6. तो 0.6 कितने दफ़ा आ गए, 5 दफ़ा, तो हम टू द पावर 5 लगा देंगे इसकी, और 0.4 टू द पावर 2. अच्छा, अब ये जो एक ऑर्डर हो गया ना, फेलियर्स, भाई हमने एक फेलियर लगा दिया 2nd पे, और एक फेलियर हमारे पास आया 6th पेशेंट, ये तो एक पॉसिबल ऑर्डर है. दूसरा ऑर्डर ये भी हो सकता है कि 1st पेशेंट वो भी हमारे पास एक फेलियर हो. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डर ये भी हो सकता है कि हमारे पास पहला पेशेंट फेलियर था, दूसरा पेशेंट भी हमारे पास फेलियर है, ठीक है, और बाकी के जो हमारे पास 5 हैं वो सारे सक्सेसेस हैं, ठीक है. ये एक हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर. इसी तरह से हमारे पास ये भी हो सकता है कि 3rd नंबर पे हमारे पास फेलियर आ जाए, और हमारे पास एक 5th नंबर पे फेलियर आ जाए, बाकी हर जगह सक्सेसेस हों. तो ऐसे कितने ऑर्डर्स होंगे, या ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे कि जिसमें 2 फेलियर होंगे और 5 सक्सेसेस होंगी. बट रिमेंबर, आखिरी वाला ये सक्सेस ही होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको तो यहाँ से हटा दें, लास्ट वाले को हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका तो हमको कंफर्म है कि इस ऑर्डर पे, यानी कि इस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे तो सक्सेस होनी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन
ये जो रिमेनिंग 6 केसेस हैं, इन पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनकी जगह चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए हम यहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। और कॉम्बिनेशन अब क्या है, हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया हमने, एक फेलियर और एक सक्सेस। अब फेलियर में कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं फेलियर में, और सक्सेस में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जबकि टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो हम जब कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली क्या बन गया, 6C4। 2 ग्रुप्स बन गए हमारे पास, एक 4 का और एक 2 का। तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 6C4। अच्छा, we could list all possible orders by rearranging the F's and S except for the last outcome, which must be the 5th success. The total number of possible orders is equal to the number of partitions of the first 6 trials into 2 groups, with 2 failures assigned to one group and 4 successes assigned to the other group. This can be done in 6C4, that is 15 mutually exclusive ways. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमने अप्लाई किया 6C4, क्योंकि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में तो ऑलरेडी हमारे पास 2 आ जाएगा। NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सक्सेस और फेलियर्स दोनों की इसमें यहाँ बात हो गई, 4 सक्सेसेस एंड 2 फेलियर्स। Hence K represents the outcome on which the 5th success occurs. यानी कि hence if 6 अगर हम K से रिप्रेजेंट करें the outcome on which the 5th success occurs, तो फिर probability of x is equal to 7। अब देखें x क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्चुअली, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच kth सक्सेस, और हाँ k की बात हो रही थी, हाँ नंबर x क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच kth सक्सेस अकर्स, और k क्या है हमारे पास, 5th पेशेंट टू रिलीव एक्सपीरियंस। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए, 7 ट्रायल्स हुए, और जो 7th पेशेंट है वो एक्चुअली 5th पेशेंट टू रिलीव टू एक्सपीरियंस रिलीफ है, यानी 5th पेशेंट फॉर सक्सेस। तो हम x को भी 7 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 7 टोटल ट्रायल्स हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन हम किसके अप्लाई करेंगे, 6C4, क्योंकि 7th पेशेंट को तो हमने छोड़ दिया, वो तो सक्सेस है, बाकी 6 की बात हमको करनी है। 6C और 4 कैसे आया, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ सक्सेसेस है। आप किसी एक को अगर यहाँ लिखते हैं तो नंबर ऑफ फेलियर्स ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। अच्छा, और फिर अब ये तो हो गए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और फिर अब यहाँ आप अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 1 पॉसिबल ऑर्डर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पॉसिबल ऑर्डर हो गया इनटू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, फाइनल प्रोबेबिलिटी। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये है probability that the 5th patient to experience relief is the 7th patient to receive the drug